السلام علیکم نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ میں ہوں اینی جنید۔ بلیٹن میں ساتھ دیں گے عمیر بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ارے الارم نہیں بجا صبح، اوہو بہت لیٹ ہو گیا ہوں، بڑا انٹرویو ہے آج۔ اچھا بھائی صاحب کٹ جائے گا۔ یہ ہے جلیٹ بلو 2 پلس جو دے محفوظ شیف کہیں بھی کیسے بھی۔ جلیٹ بلو 2 پلس کرومیم پلیٹڈ بلیڈز کے ساتھ جو چلے 5 شیو تک۔ تھینک یو سو مچ۔ جلیٹ the best a man can get۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ پیناما نہیں یو اے ای کا اقامہ لے ڈوبا۔ دبئی کی کمپنی کیپٹل FZE سے تنخواہ لیتے رہے جو نکلوائی بھی نہیں اور کاغذات نامزدگی میں چھپاتے بھی رہے، یہی جھوٹ پکڑا گیا جس پر سپریم کورٹ نے روپا ایکٹ اور آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل قرار دے کر نواز شریف کے اقتدار کی بساط لپیٹ دی۔ عدالت نے صاف کہہ دیا کہ نواز شریف صادق امین نہیں رہے، اب وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن بھی فوری حرکت میں آیا اور نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے نواز شریف کو NA 120 کے نشست سے محروم کر دیا۔ پیناما فیصلے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے چیف جسٹس ایک معزز جج بھی نامزد کریں گے۔ لارجر بینچ کے متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ GIT ممبران کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ پیناما کا ہنگامہ، اقامہ پر ملا جانے کا پروانہ۔ کیا ہوا کیسے ہوا، چال الٹی پڑی، نواز شریف ایک بار پھر مات کھا بیٹھے۔ سب ہوا وہ چھوڑو۔ سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے۔ کیا ہوا کاغذات نامزدگی میں نواز شریف نے کیپٹل FZE جبل علی UAE سے حاصل آمدنی نہ بتائی۔ جھوٹ پر نواز شریف عوامی نمائندگی ایکٹ روپا اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار۔ سپریم کورٹ کا حکم آیا تو الیکشن کمیشن نے بھی پھرتی دکھائی، نواز شریف کو NA 120 سے نشست خالی کرنے کا پروانہ جاری کر دیا۔ عدالتی حکم کی روح سے چیف جسٹس فیصلے کے نفاذ اور احتساب عدالت کی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کسی معزز جج کو نامزد کریں گے۔ پاکستان کے صدر ملک کے آئین کے تحت ضروری اقدامات کر کے جمہوری نظام کو یقینی بنائیں۔ GIT ممبران کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ اور صرف میاں محمد نواز شریف نہیں، پورے کا پورا خاندان ہی کلین بولڈ ہو گیا۔ صرف نواز شریف نہیں، پورے خاندان یعنی کہ پیناما کی لپیٹ میں یہ پورا خاندان آ گیا۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف، ان کے بچوں، داماد اور سمدھی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ ریفرنسز فیصلے کی 1.5 ماہ کے اندر داخل کیے جائیں اور احتساب عدالت ان پر فیصلہ 6 ماہ میں کرے گی۔ سپریم کورٹ نے نیب کو نواز شریف، مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف لندن پارک لین فلیٹس پر ریفرنس داخل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ نواز شریف، حسین نواز اور حسن نواز کے خلاف فیصلے میں ذکر کی گئی عزیزیہ اسٹیل مل اور بل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ریفرنس بھیجا جائے۔ سپریم کورٹ نے اسحاق ڈار کے خلاف بھی آمدن سے زائد اثاثے اور فنڈ رکھنے پر ریفرنس بھیجنے کا حکم جاری کیا۔ فریقین کے اقدامات سے تعلق ثابت ہو تو شیخ سعید، موسیٰ غنی، کاشف مسعود، جاوید کیانی اور سعید احمد کے خلاف بھی نیب کارروائی کرے۔ ریفرنسز عدالتی فیصلے کے 1.5 ماہ کے اندر داخل کیے جائیں۔ احتساب عدالت ان پر فیصلہ 6 ماہ میں کرے۔ اگر کوئی نیا اثاثہ سامنے آتا ہے تو نیب سپلیمنٹری ریفرنس بھی بھیج سکتا ہے۔ وزارت عظمیٰ کا ہما کس کے سر سجے گا، اقتدار کے منصب پر کون ہوگا براجمان؟ حکمران لیگ نے مشاورتی اجلاس میں سب طے کر لیا۔ شہباز شریف وزیراعظم کے سب سے مضبوط امیدوار بن کر سامنے آئے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ شہباز شریف مرکز میں آ کر قیادت کریں۔ چودھری نثار، سردار ریاض صادق، چودھری جعفر اقبال، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ وزارت عظمیٰ کا منصب کون سنبھالے گا؟ نون لیگ کے مشاورتی اجلاس میں حکمران لیگ سے کئی نام سامنے آ گئے۔ شہباز شریف مضبوط امیدوار، چودھری نثار بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل۔
सरदार अयाज सादिक, चौधरी जाफर इकबाल, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी भी वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरे। ताहम वज़ारत उज़्मा का कुर्रा किसके नाम निकलेगा, हतमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। मुशावरती इजलास में आइंदा के राय अमल पर भी गौर किया गया। 45 दिन की अबूरी मुद्दत पूरी होने पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया गया। इत्तेहादियों ने भी नवाज शरीफ को हर फैसले का खैर मकदम करने का अंदिया दिया। मुशावरती इजलास में पार्टी के सदर पर भी बहस की गई। कुलसूम नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नवाज शरीफ को इक्तिदार से जाना पड़ा तो नया वज़ीर आज़म लाने के लिए नून लीग में मुशावरत का सिलसिला दिन भर जारी रहा। नए कायदे ऐवान का नाम फाइनल करने के लिए कल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया गया। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, एहसन इकबाल और दीगर नामों पर मुशावरत जारी है। सुबह से लेकर रात तक वज़ीर आज़म हाउस में क्या सरगर्मियां रही, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, बताइएगा क्या सरगर्मियां रही? जी बिल्कुल, आज सुबह से लेकर रात गए तक वज़ीर आज़म हाउस सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। सियासी सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी हैं। आज सुबह जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म में मौजूद थे और उनके रफ़का को भी यहाँ पर तलब किया गया था, इकट्ठे मिलकर तमाम काबीना के अहम वज़रा जिसमें चौधरी निसार अली खान, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और दीगर रफ़का मौजूद थे, उन्होंने इकट्ठे मिलकर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना, जिसके बाद उन्हें एक कॉपी भी फराहम की गई। इसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि वज़ीर आज़म को फैसला कबूल करना चाहिए या नहीं, लेकिन बाद ये फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म फैसला कबूल करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो अपने ओहदे से सबकदोश हो गए। इसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि आया आइंदा के लिए कायदे ऐवान कौन होगा, हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा, क्योंकि एक आइनी खला भी पैदा हो चुका है कि मुल्क में ना तो चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद है, ना वज़ीर आज़म मौजूद है और ना ही उनकी काबीना मौजूद है। इसलिए हुकूमत के जो काम हैं, जो अमूर हैं, वो कौन सर अंजाम देगा, ये सवाल बड़ा अहम था, जिसके लिए आज दिन भर मुशावरत की जाती रही। जिसके बाद ये फैसला हुआ कि कल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाए। आज जो मुशावरत हुई उसमें वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ का नाम भी जो है वज़ीर आज़म के तौर पर लिया गया। नवाज शरीफ साहब ने ये जो इस ख्वाहिश का इजहार किया कि शहबाज शरीफ को मरकज़ में लाया जाए। ताहम आज चौधरी निसार अली खान, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ का नाम तो लिस्ट से निकल गया है, लेकिन एहसन इकबाल के साथ चौधरी जाफर इकबाल और एयाज सादिक का नाम भी जो है वो आज इस पर मुशावरत बनाए नामों पर मुशावरत जारी है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच। नवाज शरीफ कितने अरसे के लिए नाअहल हुए हैं, आईनी और कानूनी माहिरीन भी तजब्जुब का शिकार हैं। बैरिस्टर फरूख नसीम के मुताबिक डिक्लेरेशन के बाद नाअहली ताहयात होती है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रशीद रिजवी कहते हैं कि नवाज शरीफ नाअहल सिर्फ रवा मुद्दत के लिए हुए हैं, अगला इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 62F कहता है कि रुकने असम्बली वो शख्स नहीं बन सकता जिसकी सदाकत के खिलाफ किसी अदालत ने फैसला दिया हो। अदालत उज़्मा ने अगरचे नवाज शरीफ को 62F के तहत नाअहल तो कर दिया, मगर क्या ये नाअहली मखसूस मुद्दत के लिए है या फिर ताहयात? आईनी माहिरीन इस नुक्ते पर इख्तलाफ रखते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रशीद रिजवी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, वो कानूनी लिहाज से आइंदा किसी भी इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। बैरिस्टर फरूख नसीम का कहना है कि अदालत ने फैसला दिया है कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं, मौजूदा फैसले की तलवार नवाज शरीफ के सर पर लटकती रहेगी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली जफर के मुताबिक जब तक अदालती फैसला मौजूद है तब तक नवाज शरीफ नाअहल ही रहेंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद कामरान, न्यूज़ इस्लामाबाद। कबल इस वक्त इलेक्शन नहीं कराएंगे। नून लीग की हुकूमत जून 2018 तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि फैसला काबिले कबूल नहीं, लेकिन इंतशार से बचने के लिए अमल दरामद का आगाज कर दिया। यही मियाद रखा गया तो कोई नहीं बच पाएगा। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराजात उठाते हुए रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन इस्तेमाल करने का इंदिया दे दिया। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ अवामी अदालत से पूरी कुव्वत के साथ दोबारा वापस आएंगे। डिसीजन के लिए कल अनाउंस हुआ कि जी 5 मेंबर साहबान इसका फैसला करेंगे। कम अज कम हमारे लिए ये हैरान कुन जरूर है।
खान साहब बगले ना बजाएं क्योंकि चंद रोज तक अब बगले झाकेंगे। जो खुशियां मना रहे हैं वो बहुत जल्द सोचेंगे कि हमने क्या गलती की। 10,000 दरहम की तनख्वाह आपने अपने बेटे की कंपनी से, जो उसके आप चेयरमैन थे, वसूल नहीं की। आप वसूल कर सकते थे। और इमरान खान ने वजीर आजम की नाअहली के फैसले को मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम और कौमी तरक्की की मुस्तहकम बुनियाद करार दे दिया। इतवार को इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं अब हुकूमत के दीगर करप्ट अफराद का एहतसाब होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज अहमद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पनामा स्कैंडल के बाद चलाई जाने वाली जद्दोजहद पार्लियामेंट, सड़क और अदालत में पहुंचकर अंजाम को पहुंची। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उनको अपनी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं JIT के मेंबर्स का मैं कहता हूं आप कौम के हीरो हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ से जाती इख्तलाफ नहीं, मुल्क और कौम के लिए जंग लड़ी। वज़ीर आज़म की नाअहली शुरुआत है, बाकी करप्ट अफराद की बारी भी आनी है। इमरान खान ने इतवार को इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर मनाने के लिए बड़े जलसे का ऐलान भी किया। मेरा और नवाज शरीफ का कोई जाती चीज नहीं है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शौकत खानम अस्पताल को मुखालफत का निशाना बनाए जाने पर अफसोस का इजहार किया और ऐसा करने वालों को कौम का गद्दार कहा। कैमरामैन फरहाद खोकर के साथ शहबाज अहमद, न्यूज़ इस्लामाबाद। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं नवाज शरीफ ने मनसब को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। पनामा पेपर्स किसी पाकिस्तानी का इल्जाम नहीं था। अवामी लीग के शेख रशीद बोले उन्हें असेंबली से बाहर करने वाले आज खुद बाहर हो गए। पप्पू 5 पर्चों में फेल हो गया। अदालती फैसला खुशाइन मगर एहतसाब सबका जरूरी है। सिराजुल हक पुरुम्मीद है कि अदालत अपनी जिम्मेदारी मजीद पूरा करेगी। मीडिया गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी का कहना था हमारा मुकाबला करप्ट लोगों के साथ है, नवाज शरीफ टारगेट नहीं। हम 1996 से करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। शेख रशीद ने तो पूरी शरीफ फैमिली को ही चोर करार दे दिया। बोले पहले ही कहा था कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो। अवामी लीग के सरबराह ने पनामा फैसले को अवाम की जीत करार दिया। उधर अदालत की जानिब से नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला आते ही कराची था खैबर तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर खूब जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। फिजा भी गो नवाज गो के नारों से गूंज उठी। पनामा केस पर अदालत उज़्मा का तारीखी फैसला। शहर शहर खिलाड़ियों का जश्न, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते रहे। अदालती हुक्मनामे के बाद ही बनी गाला के बाहर PTI कारकुन खुशी से झूम उठे। लाहौर में अहम सड़कों और चौराहों पर गो नवाज गो के नारों की गूंज सुनाई देती रही। रायवंड से PTI रहनुमाओं ने सैकड़ों कारकुनों के हमरा रैली निकाली। फैसलाबाद में PTI की खवातीन सड़कों पर निकल आई। बन्नू में तहरीक इंसाफ, ISF और यूथ के कारकुनों ने प्रेस क्लब के बाहर जश्न मनाया। सरगोदा, सक्खर, मियां चुन्नू, उमरकोट, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन और तांदियावाला के अलावा दीगर शहरों में भी कप्तान के खिलाड़ी जश्न मनाते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जहां एक जानिब जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ की नाअहली के बाद लीगी कारकुनान खासे नाला हैं। नून लीग के वर्कर्स लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर निकल आए और खूब एहतजाज किया। पनामा केस का फैसला आते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया। दाता दरबार के सामने टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में सूबाई वजीर मुजतबा शुजाउर रहमान भी शामिल हुए। मुजतबा शुजा ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम नवाज शरीफ के साथ है।
मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस फैसले को नामंजूर करते हैं। लाहौर के बाबू साहब इंटरचेंज पर लीगी कारकुनान ने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की ज़ेरे क़ियादत एहतजाज किया। फैसले को नामंजूर करते हुए धरना दिया और टायर भी जलाए। लीगी कारकुनान के एहतजाज के बायस बाबू साहब चौक में पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई और कंटेनर लगाकर सड़कों को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज की वजह से शहरी शदीद परेशान दिखाई दिए। कैमरा और रिपोर्टर टीम के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज, लाहौर। पनामा केस का फैसला आते ही मरियम नवाज सोशल मीडिया पर सरगर्म हो गई। नून लीग के मुशावरती इजलास की तस्वीर जारी की, रोक सको तो रोक लो का नारा बुलंद किया और लिखा, आज का दिन नवाज शरीफ की 2018 में फतह की राह हमवार करेगा। आज का दिन नवाज शरीफ की आइंदा इलेक्शन में फतह की राह हमवार करेगा, रोक सको तो रोक लो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मरियम नवाज सोशल मीडिया पर सरगर्म हो गईं। लिखती हैं, एक और मुंतखब वजीर आजम घर भिजवा दिया गया। मरियम नवाज की नजर में असल आदमी वो है जो सजा बर्दाश्त करते हुए मुस्कुराए। वजीर आजम हाउस में इजलास के दौरान नवाज शरीफ की मुस्कुराते हुए तस्वीर भी जारी कर दी। साबिक वजीर आजम की साहबजादी का इसरार है कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ मुत्तहिद है बल्कि पहले से ज्यादा पुरअज़्म और बेपरवाह है। नवाज शरीफ चले गए और काबीना भी तहलील हो गई। हुकूमती उमूर की कमान असल हुक्मरानों ने संभाल ली। नया वजीर आजम आने तक तमाम अहम फैसले ब्यूरोक्रेसी करेगी। नवाज शरीफ की नाअहली पर हुकूमत खत्म। हुकूमत कौन चला रहा है? सुबकदोश वजीर एहसन इकबाल ने भी सवाल उठाया। मुल्क में फिलहाल वजीर आजम है ना काबीना। हुकूमत चली जाए तो इदारों के सेक्रेटरी तमाम मामला चलाते हैं। सीनियर तज्जियाकार ओरिया मकबूल जान का कहना है कि अबूरी सेटअप आने तक मुल्क ब्यूरोक्रेसी ही चलाएगी। रूल्स ऑफ बिजनेस से कहते हैं कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो किसी भी महकमे का उसका सेक्रेटरी होता है और वो तमाम तर जितने भी सरकार के काम हैं वो सेक्रेटरी जो है वो अंजाम दे रहा होता है। यूं तो आम हालात में भी सेक्रेटरीज मामला चलाते हैं, ताहम अब अबूरी वजीर आजम आने तक निजाम हुकूमत मुकम्मल ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर चला गया है। ये तो बताओ नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है? समाअत के 5 रोज। पनामा अमल दरामद केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। रिजाइन रोज सुबह उठते हैं ये इस्तीफों की भीख मांगते हैं। हर रोज बाखबर। तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने चुना है, अगर आपने पेश नहीं किया वो रिकॉर्ड कहाँ है? नैब के वकील ने अपोजिशन जमातों को बड़े केस की बड़ी कवरेज। एक एक सत्र को पढ़ा जाएगा, एक एक वकील की जानिब से दिए गए तहरीरी जवाब को भी अदालत पढ़ेगी। जफर हिजाजी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसला आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया है। कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो। न्यू न्यूज ने रखा हर पल। नया वजीर आजम कौन होगा? नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का नाम तजवीज़ कर दिया। अबूरी वजीर आजम के लिए अयाज सादिक और शाहिद खाकान के नामों पर गौर। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, कबल अज वक्त इंतखाबात का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। लीगी रहनुमाओं का कहना है तारीख जजिस को जज करेगी। और इमरान खान ने पनामा फैसले को कौमी तरक्की की मुस्तहकम बुनियाद करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, मुल्क को कौन के लिए जंग लड़ी। वेलकम बैक न्यूज़ अपडेट्स। आपने जाने एक बार फिर से बात करेंगे पनामा के हंगामे की। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुस्लिम लीग नून का पूरा साथ देने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं चोर चोर का शोर मचाने वाले बताएं बरामद होने वाला माल कहां है। उन्होंने कहा कि समझा जाए ये सी पैक के खिलाफ साजिश है। इस्लामाबाद से इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर। पनामा फैसले के बाद अपनी रिहाइश के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पनामा केस में इल्जामात क्या थे और नाअहली किस पर हुई, समझ से बाला तारा है। चोर पकड़ा जाता है, उसका पता होता है कि कहाँ चोरी की है, उसका पता होता है किस मौके पर की है, किस दिन पे की है, वो कुएं का दिन कहाँ है, वो कुएं की जगह कौन सी है। फिर जब पकड़ा जाता है तो उसको रिकवर किया जाता है। क्या पनामा में जो ऑफशोर कंपनियां बाहर बनी हैं क्या उसका पैसा अब पाकिस्तान में आ जाएगा?
मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस बात को नजरअंदाज न किया जाए कि आलमी ताकतें CPEC के खिलाफ साजिश कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के अंदर CPEC और तरक्की का जो सफर चल रहा है और ये इंडिया की नजरों में भी खटक रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलवास्ता तौर पर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी समझ से बाहर है कि कैसे हो सकता है कि आला अदलिया के जहन में ये ना हो कि इसके फैसले से बहरान पैदा हो जाएगा और मुल्की निजाम कैसे चलेगा। अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। नून लीग सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने की जंग ना लड़े, इदारों को बचाने की जंग लड़नी चाहिए। मुल्तान से कैसे नवाज भुट्टा की रिपोर्ट देखिए। पनामा केस के फैसला के बाद सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने मीडिया से बात करते हुए पेश गोई की कि जिस तरह भुट्टो साहब को फांसी देने का फैसला कबूल नहीं किया जाता, इसी तरह इस फैसले को भी जज नाक से लगाकर फेंक देंगे। जज जो है इस फैसले को नाक से लगाएंगे और परे उठाकर फेंक देंगे। मखदूम जावेद हाशमी का कहना था कि मैंने पहले भी कहा था शरीफ फैमिली को एहतसाब का सामना करना चाहिए और मैंने नवाज शरीफ को कहा था कि उनका नाम कारोबार में नहीं होना चाहिए। कैमरामैन फयाज वागा के साथ कैसर नवाज भुट्टा, नियो न्यूज मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर इत्तलाआत की रुखसती के बाद PTV गैर जानिबदार हो गया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियों को मुनासिब कवरेज देने की हिदायत कर दी। PTV ने आज इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लू से। जी जुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐनी, सरकारी टीवी चैनल पाकिस्तान टेलीविजन ने अहम सियासी जमातों और इनकी अहमियत और मैंडेट के मुताबिक इनको मुनासिब कवरेज देने का फैसला किया है। इस हवाले से कंट्रोलर न्यूज रिपोर्टिंग मोहम्मद रमजान खालिद ने तमाम सीनियर न्यूज एडिटर्स को मरासला भिजवा दिया गया है, जिसमें वाज़िह तौर पर लिखा है कि अहम सियासी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, JUI और जमात इस्लामी और दीगर जमातें शामिल हैं, इनको इनकी अहमियत और मैंडेट के मुताबिक मुनासिब कवरेज दी जाए। और साथ ही साथ ये भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, चाहते हैं कि असेंबलियां मुद्दत पूरी करें। बिलावल भुट्टो ने वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार लाने का भी ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PP मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि मुल्क के फायदे में जाएगा। पीपल्स पार्टी इदारों की हिमायत जारी रखेगी। ये मुल्क का फायदा में जाता है, किसी एक इंडिविजुअल के फायदा में नहीं जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुझे याद है, इस पनामा इशू को फौरन उठाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और पार्लियामेंट की हिमायत की है, जबकि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। आज जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है, चाहते हैं असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। शहीद बीबी ने फरमाया कि नवाज शरीफ may succeed in conspiring against me. जहां चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह की सरबराही में केस सुना गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तारीखी फैसला देंगे और नवाज शरीफ हुकूमत बहाल कर दी गई। साल 2017 पनामा केस में नवाज हुकूमत ने खुद को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में बेंच बना। समाअत के दौरान एक बार फिर रिमार्क्स सुनाई दिए, तारीखी फैसला देंगे। इस बार नवाज शरीफ ही नाअहल करार पाए। दोनों केसेस में तारीखी फैसला के अल्फाज ही मुश्तरका नहीं बल्कि एक और दिलचस्प इत्तेफाक भी है कि पनामा अमल दरामद बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के दामाद हैं। इक़्तिदार की जंग सदा हुकूमत किसी की नहीं रहती। आने वाले पहले डट कर हुकूमत करते हैं, फिर जाते वक्त दूसरों को नसीहतें करने लगते हैं। ये मकाफाते अमल ही है कि जिन आईनी शिकों की हिमायत नून लीग करती रही वही उनके वज़ीर आज़म की नाअहली का सबब बनी।
सियासी जमातें इक़्तिदार में हो तो शुतर बेमहार, हुकूमत से जाते ही दीगर सियासी ताकतों को सबक सीखने के मशवरे। साद रफीक ने इमरान खान को तलकीन कर दी कि बगले ना बजाएं, अगले चंद रोज में बगले झांकेंगे। खान साहब बगले ना बजाएं क्योंकि चंद रोज तक अब बगले झांकेंगे। ऐसा ही कुछ नून लीग के लिए बिलावल भुट्टो ने बताया कि बीबी कहती थी कि नवाज शरीफ एक दिन मुझे याद करके रोया करेगा। One day he will cry and remember me and my father. नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जिस 62-63 की हिमायत की, आज वही कानून उनके वजीर आजम को ले डूबा। ये मकाफाते अमल नहीं तो और क्या है, लेकिन सियासतदान इससे कुछ नहीं सीखते। जब ताकत में हो तो बस एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाहरी पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिलेराना फैसला दिया। नैब को नवाज शरीफ के बच्चों, दामाद इसहाक डार और नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म देना बहुत सही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 5 मेंबर बेंच ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है। इसके लिए मैं उस सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्पेशली उसको बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत दिलेराना एक फैसला दिया है जो ऐन हक और इंसाफ के मुताबिक है। और इसके अलावा जो 6 लोग हैं, यानी इनके तीनों बच्चे नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ खुद, इनके सन इन लॉ कैप्टन सफदर और इसहाक डार जो समधी शहदैन के, इनके जो नैब को जो ऑर्डर दिया गया है कि रेफरेंस दायर किया जाए, ये बहुत सही है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके, अब पार्लियामान को भी जवाबदेह होना चाहिए। अदालत उज़्मा को, सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत सिंध के इस अमल का भी सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। बहुत संजीदा मामला है कि किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म उसे नाअहल करार दे। मुल्क का एक रियासती आइनी इदारा अदालत उज़्मा ये अमल कायम रखे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने पनामा केस पर अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि अदालतें एक पार्टी तक ना रुके, जहां पर भी करप्शन हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क में पनामा से भी बड़े केसेस मौजूद हैं। फैसला है इसका पाक से ज़मीन पार्टी खैर मकदम करती है, अदालत के फैसले को मानती है और हम समझते हैं कि इससे जमहूरियत कमज़ोर नहीं, जमहूरियत मजबूत हुई है और होगी मजबूत। अदालत उज़्मा से, पाकिस्तान की तमाम इदारों से ये कहना चाहता हूँ कि एहतसाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कप्तान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ को भी खुशी से निहाल कर दिया। फौरी ट्वीट किए कि नवाज शरीफ चले गए। तनकीद करते हुए बोली कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने 20 साल कबल उन्हें जेल भेजने की साजिशें भी रचाईं। सोशलिस्तान पर पनामा के गहरे असरात हर तरफ छिड़ी है। पनामा केस के फैसले पर बहस। जर्मन सहाफ़ी साबिक सीआईए एहलकार का भी ट्विटर पर रद्द-ए-अमल। कुछ लोगों ने मज़ाहिया वीडियोस भी पोस्ट की। पनामा फैसले पर ट्वीट्स का रश। जर्मन सहाफ़ी फेडरिक ओबरमायर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। साबिक सीआईए एहलकार एडवर्ड स्नोडन ने ट्वीट किया, दलदल साफ होने का मंजर। कौमी लीडर की करप्शन को सहाफियों के बेनकाब करने पर अदालत ने नाअहल करार दे दिया। एक साहब ने तो गो नवाज गो गाते कुछ मंचलों के गानों की वीडियो बनाकर पोस्ट कर डाली। हुक्मरान जमात के हामियों ने नवाज शरीफ का साथ निभाने की ठानी। कहते हैं जब तक है दम में दम चलेंगे नवाज के संग। एक ट्विटर सारफा मज़ाहिया अंदाज में लिखती हैं, क्यों उदास बैठे हो गर्मियों की शामों में, ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में।
پیناما فیصلے کے اعلان پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں خوشی منائی گئی اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے بعد تیزی پر بند ہوئی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام اور سرمایہ کاروں میں اعتماد نے مارکیٹ کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کر دی۔ وزارت پیٹرولیم کو سمری بھجوا دی گئی ہے۔ اوگرا نے 1 اگست سے ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 5 روپے 7 پیسے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 67 پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش کی۔ ہم خبر آپ کو دیں، آپریشن خیبر 4 کامیابی سے جاری ہے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے وچاوانا باغ زیارت سر اور پاک درہ کے 110 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ دہشت گردوں سے خالی کروا لیا اور دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ بھی کر دیا گیا ہے۔ کئی علاقوں کو دہشت گردوں سے خالی کروایا گیا ہے، دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا۔ آپریشن خیبر 4 کی کامیابیوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق 110 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے خالی کروایا گیا ہے۔ اور کھیل کے میدان سے خبر ہے کہ شہریار خان کو ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال نہ ہونے کا دکھ۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں چیئرمین PCB بننے کے لیے میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نواز شریف اور پیناما کیس پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ That's a nice way to begin your innings. It's a 4. پاک بھارت کرکٹ تعلقات بحال نہ کرنے کا دکھ رہے گا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی چاہتے تھے۔ PCB گورننگ بورڈ کے آخری اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہریار خان کا کہنا تھا ورلڈ 11 کے دورے کے لیے صوبائی حکومت کی اجازت کے منتظر ہیں۔ ہم آنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ہمیں کم از کم گرین لائٹ تو دکھا دیں کہ آپ کی پروونشل حکومت سیکیورٹی آپ کو دے گی، وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ نئے گورننگ بورڈ میں چیئرمین شپ کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے نامزد امیدوار نجم سیٹھی نے پاناما کیس اور نواز شریف کی نااہلی سے متعلق سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد میں جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے PCB کے ساتھ۔ آج PCB کا ایک پیٹرن نہیں ہے۔ گورننگ بورڈ نے نئے بورڈ کے لیے لاہور، فاٹا، کوئٹہ، سیالکوٹ، وابڈا، UBL، سوئی سدرن گیس اور HBL کے نمائندگان کی منظوری دے دی۔ کیمرامین محمد امین کے ساتھ ابراہیم بادیس، نیو نیوز، لاہور۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں اجازت دیں اور آپ دیکھیں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں سجا رنگا رنگ فیشن ویک۔